بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے تقریباً 3.5 گھنٹے جو ہیں انہوں نے جے آئی ٹی میں گزارے اور اس وقت وہ میڈیا نمائندگان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دیر انتظار کیا۔ ابھی میں نے جے آئی ٹی کے سامنے جس کو عدالت عظمیٰ نے جس کی تشکیل کی ہے، اس جے آئی ٹی نے مجھے کال نوٹس بھجوایا تھا کہ میں ان کے سامنے پیش ہو کر پینما کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے میں آؤں ایز سمبڈی، جو لکھا ہے نوٹس میں، ایز سمبڈی acquainted with the facts of Panama۔ تو اس حوالے سے میں نے اپنا سارا بیان الحمدللہ ریکارڈ کروا دیا ہے۔ تو میں یہ بات کرنے کے بعد یہ کہوں گا کہ ابھی پرسوں وزیر اعظم پاکستان بھی اسی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور اس طرح پاکستان کی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار یہ نیا باب رقم ہوا کہ ایک منتخب وزیر اعظم سپریم کورٹ کے قائم کردہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر انہوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ اور آج ایک اور تاریخ رقم ہوئی کہ شاید پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی صوبے کا خادم اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور پھر میں نے پیش ہو کر الحمدللہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کی حقیر خدمت کی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم منتخب سیاستدانوں کے دلوں میں عدالت اور قانون کا بڑا احترام ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بندوق کی طاقت کے تحت اقتدار پر شب خون مارتے ہیں، ان کا جو ملٹری ڈکٹیٹر اور ان کا اور منتخب سیاسی لوگوں کا عدالت اور قانون کے حوالے سے کیا رویہ ہے، کتنی ہم عدالت اور قانون کا احترام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی مجھے پرانا کمر کا مجھے عارضہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ میں نے کمر کی تکلیف کا بہانہ نہیں بنایا۔ میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں نے جا کے داخل نہیں ہو گیا کہ مجھے کمر کی تکلیف ہے، یا میں لندن اپنے معالج کے پاس پہنچ گیا۔ عدالت عظمیٰ نے یہ کانسٹیٹیوٹ کی کمیٹی اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اپنا موقف آج الحمدللہ پوری جو بھی عقل ہے اور عاجزی سے اپنا موقف پیش کیا۔ مگر یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ شریف خاندان کا جو احتساب یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ 2 جنوری بھائی بات سننے ذرا مہربانی کریں مسٹر پلیز 2 جنوری 1972 کی سرد شام اتفاق فاؤنڈریز کو قومیہ لیا گیا۔ عام آدمی قومیانے سے ذرا اس کو سمجھ میں نہیں آتا، چھین لی گئی جب اتفاق فاؤنڈریز۔ اور یہ اتفاق فاؤنڈریز وہ ہے جس کو میرے والد اور ان کے بھائیوں نے کوئی جم خانہ اور پنجاب کلب کی شام کی پارٹیز میں لائسنس لے کر اس کو عروج نہیں دیا، یا پبلک ریلیشنز کر کے لائسنسز نہیں لیے۔
बल्कि 7 भाइयों ने मेहनत मजदूरों की तरह 30 की दहाई से सफ़र शुरू किया और 60 की दहाई में इत्तेफाक फाउंड्रीज पाकिस्तान का सबसे बड़ा लोहे का, इंजीनियरिंग का, ज़रई आलात बनते थे। हत्ता के 65 की जंग में और 71 की जंग में दिफाई वहाँ पर साजो सामान बनता था और जिसको हमारे जरी और बहादुर जवान दुश्मन के ऊपर फायर करते थे। तो ये फ़ख्र है मुझे कि मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूँ। नवाज शरीफ को फ़ख्र है कि वो ऐसे बाप के बेटे हैं कि जिनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग उनको इस मुल्क में जानते हैं, अमानत और दयानत का अमीन जानते हैं उनको, मियां मोहम्मद शरीफ को, और जिनके नाम से अल्हम्दुलिल्लाह बैंक्स आंखें बंद करके उनको देते थे, कर्जे देते थे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जब बन गया तो 2 जनवरी को पहला एहतसाब भुट्टो के हाथों हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़ी फैक्ट्री को छीन लिया और 10,000 मजदूर बेरोज़गार हो गए और जो पैदावार ख़त्म हो गई। और फिर बाकी तारीख़ हिस्ट्री है। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर साहबा के दौर में 88 और 90 में हमारा दूसरा एहतसाब हुआ, जब फिर हमारे ख़ानदान के कारोबार को तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि बच गए कि 90 में दोबारा इलेक्शन हुए। तीसरी मरतबा फिर एहतसाब हुआ, वो 93 और 96 के दरमियान जब मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की दूसरी गवर्नमेंट आई और उस मरतबा उन्होंने फ़ैसला किया कि इनका नाटका बंद करना है और उनकी सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद करना है। और वो बदकिस्मती से बंद हो गया, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बंद हो गया। और फिर वो नुकसान हुआ, जॉनसन जहाज़ को आप जानते हैं कराची पोर्ट पर खड़ा रहा और करोड़ों अरबों रुपए का पैदावारी नुकसान हुआ। और फिर चौथा एहतसाब मुशर्रफ के दौर में हुआ। बेनज़ीर साहबा के दौर में मेरे वालिद मरहूम को गिरफ़्तार किया गया। मुशर्रफ के दौर में मैं आज पहली मरतबा कह रहा हूँ कि मुझे भी हथकड़ियाँ लगीं, लेकिन बदकिस्मती से ये बातें बताना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन आज मजबूरी बता रहा हूँ कि ये किस तरह कड़ा एहतसाब हुआ कि नवाज शरीफ साहब को भी हथकड़ी लगी, मुझे भी हथकड़ी लगी और हम जहाज़ में एक दूसरे के सामने मैंने आंखें झुकाई हुई थी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मैं कौम के अपने बुज़ुर्गों और भाइयों से मुखातिब हूँ इन कैमरास के ज़रिए कि एहतसाब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा एहतसाब हुआ, 5वां एहतसाब हो रहा है। लेकिन एहतसाब हो पहले भी और आज भी अपने आप को पेश करते हैं, मगर ये एहतसाब क्या है? ज़ाती ख़ानदान के कारोबार को तबाह किया। क्या इन 5 मरतबा आज तक कोई सरकारी खुर्द बुर्द का एक धेले का कोई हमारे ख़िलाफ़ केस है? कोई करप्शन का किसी सड़क में ठेके का, किसी अपना मेट्रो बस के ठेके का मेरे ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, या इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स अरबों रुपए के लग रहे हैं, अरबों डॉलर्स के, जिसमें कई सौ अरब रुपए की बचत हुई। शहर रमज़ान है, इसकी कसम खाकर कहता हूँ कि ऑरेंज लाइन में और इन पावर प्लांट्स में 200 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत हुई है। लेकिन ये हमें खुशी है कि ये कौम की खिदमत कर सके, हकीर खिदमत। हाँ, एहतसाब करना तो उसके लिए हाजिर कल भी थे, आज भी हैं और हो रहा है, मगर कोई सरकारी खुर्द-बुर्द नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, ना पहले था 96 में, ना पीछे था, ना आज ना कल होगा। वही कारोबारी जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको तबाह कर दिया गया। मैं आखिरी बात करता हूँ, सुनने बाद इत्तेफाक फाउंड्रीज तबाह की, लेकिन उसके जो बैंकों के कर्जे, मेरी बात सुने, उसके जो बैंकों के कर्जे थे 5.25 अरब रुपए, एक धेला अदा किया 5.25 अरब रुपए। ना कॉस्ट ऑफ फंड माफ़ करवाए, ना वेवर कमी करवाई। मुझे पाकिस्तान
यतीमों और बेवाओं के कर्जे माफ़ करवा के कनाडा में घर, लंदन में प्रॉपर्टियां, दुबई में कारोबार और बनते हैं अशराफिया। लूट खसूट का वो बाजार गर्म NICL, वो जो गोंदल साहब हैं 30 अरब रुपए का, उनके खिलाफ आज भी मुकदमा, NICL का अरबों रुपए का मुकदमा। आप रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। नंदीपुर में 50 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान की गरीब कौम को। नीलम झेलम 500 अरब पर पहुंच गया, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये हैं वो करप्शन के केसेस जिसने पाकिस्तान के कौम को खोखला किया। आज अगर किसी यतीम को तालीम नहीं मिलती तो इस करप्शन की बदौलत है। आज किसी को दवाई नहीं मिलती तो इस करप्शन की बदौलत है। मैं आपको ये कहता हूँ कि आज अज़्म हिम्मत की दास्तान बहुत लंबी है। बस मैं इतनी बात करूँगा कि इस मट्टी से हमें बेहद प्यार है। ये मट्टी जो है, ये मट्टी हमारी है, आपकी है। हमें मिलकर मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। आप लोग मैं भाई बारी मैंने जितने बात सुन लें जितने भाई जितने भी उन्होंने सवाल किए, मैंने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने जवाब दिया। वाह 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 बात सुन लें। ये बात गलत, बात सुन लें भाई, बात सुन लें भाई, बात सुन लें, जवाब दें। ये कोई जवाब नहीं है। शरीफ फैमिली के तमाम कारोबार जो तबाह किए कारोबार जो तबाह, सुन लें बात, हकायक से मुंह ना चढ़ाए ना। शरीफ फैमिली के जो कारोबार तबाह किए वो क्या लूट खसूट नहीं थी भुट्टो हुकूमत की, उनकी साहबजादी की हुकूमत की, मुशर्रफ की हुकूमत की? क्या जो आप मुझसे बात करें, क्या किसी अस्पताल के एक्सरे मशीन से कोई करप्शन निकली? कोई सड़क से करप्शन निकली? कोई मेट्रो से करप्शन निकली? तालीम के मैदान में करप्शन निकली? कोई पानी के मैदान में करप्शन निकली? बिजली के मंसूबों में करप्शन निकली? खुदा का खौफ खाएं, उसके बावजूद भी उस मालिक से डर के कहते हैं एक नहीं करोड़ मरतबा हिसाब करो। ये मट्टी हमारी है, मट्टी हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ जुडिशल एकेडमी से पेशी के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुझे नोटा था पेश होने का, उसके बाद वो पेश हुए।